Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. Okay, so we are starting our lecture today, that is from Y delta transformation. Okay, last lecture में we discussed about voltage divider rule and the current divider rule and how resistors are connected in parallel and in series. Now we in this topic we will discuss Y delta transformations. So Y delta transformation is basically performed for those circuits in which resistance are neither connected in series and nor in parallel, and we have to simplify that circuit in order to analyze the equivalent circuit. So what we have to do, we have to perform the Y delta transformation in that case. For example, we have a circuit in which we have a resistor R1, R2, R3, R4, R5, and R6, and we actually can't identify that whether these resistors are connected in parallel or in series, because they are neither connected in parallel nor in series. What we have to do, we have to perform the Y delta transformation and we have to analyze that circuit. So Y delta transformations are basically the first network that is given in figure A, that is a Y network. It has a resistors R1, R2 and R3, okay, because it is in the shape of Y. इसी network को we can also call it as the T network, because R1 and R2 and R3 can also form the T. So Y and T network are the same thing. It has a one common point. This is called as the neutral point N, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है वो interconnected है. So in Y delta transformation, Y network, we have three resistors R1, R2, and R3, and all of the three resistors have a single point common, which is called as a neutral point. ठीक है. Similarly, it can also form a T. T भी सेम है क्योंकि R1 and R2 का एक पॉइंट कॉमन है, R3 का भी यहाँ से कॉमन पॉइंट है. So ये Y network भी हो सकता है. It can be called as the T network. Next is delta. Delta network is in the shape of delta. आप लोगों को delta का साइन पता है, ये delta की शेप में है, ठीक है. It can also called as the pi network. Delta में we have RA, RB and RC resistors, ठीक है. ये सिर्फ discriminate करने के लिए, right from the Y to the delta. It can also called as the pi because this is in the shape of the pi, RC, RA and RB. इसमें से डेल्टा और Y में डिफरेंशिएशन क्या है? Y में तीनों रेजिस्टर्स का एक कॉमन पॉइंट है, जबकि डेल्टा में हमारे पास हर दो रेजिस्टर्स के दरमियान में एक कॉमन पॉइंट है. फॉर एग्जांपल RC एंड RB के दरमियान 1 पॉइंट कॉमन है, RB और RC 3 पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, RA और RB जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. So हमारे पास we have to identify that whether the resistors are connected in Y network or they are connected in the delta network, और उनकी transformation करके Y से delta में जाके या delta से Y में जाके we can simplify our circuit. Let's see how. So this is a delta network and we have to convert into the Y network. So delta में हमारे पास क्या resistors हैं? RA, RB, RC, और Y में हमारे पास ये resistors हैं R1, R2 and R3. So what we have to do, we have to simply place the delta to y to delta conversion है, delta to y conversion सबसे पहले हम कर रहे हैं. So delta to y conversion में हम क्या करते हैं कि delta के अंदर हम y network को place कर देते हैं. ठीक है. So delta network में हमारे पास क्या है? RA, RB, RC, और y network में हमारे पास क्या है? R1, R2 and R3 हमारे पास जो resistors हैं. ये इनके simplified equations हैं कि when we have to convert delta to y, तो हमारे पास कौन कौन से resistors होने चाहिए? R1, R2 and R3, और इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? राइट फ्रॉम द डेल्टा, दैट इज RA, RB एंड RC. ठीक है. सो वी हैव टू सी हाउ दिस कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड. मैं आपको डेल्टा टू वाई की कन्वर्ट करके बताती हूँ, एंड वाई टू डेल्टा को वी जस्ट एनालाइज इट एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि वो कैसे परफॉर्म. सो डेल्टा टू वाई कन्वर्जन में हमारे पास क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा टू वाई कन्वर्जन में हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड नेटवर्क्स हमने यहाँ पे बना दी हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो R1 एंड R3 इज कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2. R1 and R3 जो हमारे पास resistors हैं, they are connected between 1 and 2. So we can say it as R12 of Y, which is equals to, this is a series combination of R1 plus R3. अगर हम इसी R12 को डेल्टा के केस में एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1-2 के केस में जो RB है that is in parallel with the series combination of RA and RC. So we can say RB is in parallel with RA and RC. ठीक है. ये आप लोग को यहाँ से नजर आ रहा है 1 और 2 पे RB कनेक्टेड है और ये इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है. So we can say that RB into RA plus RC divided by RA plus RB plus RC. अगर हम अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें आपस में
तो मेरे पास R12 क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या R1 प्लस R3 और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा RB इंटू RA प्लस RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम R13 को देखें, R13 इसमें हमारे पास दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 R2 दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर हम यही डेल्टा के केस में देखें तो R13 हमारे पास क्या है, RC is in parallel with the series combination of RA and RB. So I can say that RC into RB plus RA divided by RA plus RB plus RC. ठीक है, so this is R12 and this is R13। अगर मैं हम यहाँ से इसी तरह से अगर हम R34 की बात करें, R34 में हमारे पास यहाँ पे क्या रेजिस्टर है, RA which is in parallel with the series combination of RC and RB। और अगर हम यही Y नेटवर्क के केस में देखें, R34 is actually R2 plus R3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप यहाँ से, so this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3। अगर आप 1 में से 3 को माइनस करें, equation 1 में से equation 3 को माइनस करें, this is R1 plus R3, this is R2 प्लस R3। अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड पे ये चीज करेंगे तो मेरे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी RC इंटू RB माइनस RA डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग 2 and 4, जो कि मेरे पास यहाँ से हमें क्या देगा, 2R1। ठीक है, और यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं R1 की इक्वेशन विच इज RB इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिला, दैट इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ y इनटू डेल्टा, सॉरी वी हैव टू कन्वर्ट अ डेल्टा इनटू y, सो हमें डिजाइन अ y एट द सेम नोड्स व्हेन डेल्टा इज कनेक्टेड। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि डेल्टा के अंदर y को, बिकॉज वी हैव टू ट्रांसफॉर्म डेल्टा इनटू y, तो y को हम डेल्टा के अंदर प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे हमें अननोन क्या है, R1 R2 एंड R3। तो हमारे पास जो कोई भी हमें अगर रेजिस्टर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द R1, so we have to multiply it by the, we have to multiply the connecting resistance divided by all of the resistances। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो R1 है हमारे पास, वो किसकी, वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा कि इस पॉइंट पे R1 जो है वो कनेक्टेड है वन नोड के साथ। तो इस नोड पे हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। सो R1 को अगर हम देखें तो वो वन पॉइंट पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा में कौन कौन से रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, RC एंड RB। सो हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय R1 प्लस डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इसी तरह से जब हम R2 की बात करेंगे Y नेटवर्क के केस में, तो वो क्योंकि 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है, 2 नोड पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा के कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं, RA इंटू RC। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। सिमिलरली अगर हम R3 की बात करें तो ये थर्ड नोड पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। So this is how we can convert a delta network into Y network के जहाँ पे भी जिस नोड पे वो रेजिस्टर कनेक्टेड है उसके इक्विवेलेंट डेल्टा के रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टर्स ऑफ द डेल्टा नेटवर्क। सो इन दिस हाउ, in this mean we can convert a delta into Y network। ठीक हो गया। So each resistors in Y network is the product of two adjacent branches divided by the three delta resistors। ठीक हो गया। सो R1 is actually RB into RC divided by RA plus RB plus RC R2 and similarly we can find out the RC। so हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है कि that Y नेटवर्क का हर रेजिस्टर जो है it is a product of two adjacent branches। इसके ऑटोमेटिक इसके जो adjacent दो ब्रांचेस हैं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द डेल्टा रेजिस्टर्स, सम ऑफ ऑल द डेल्टा रेजिस्टर्स। सिमिलरली अगर हमने Y टू डेल्टा कन्वर्जन करनी है तो Y टू डेल्टा कन्वर्जन में व्हाट वी हैव टू डू, Y टू डेल्टा कन्वर्जन में, सो हमारे ने क्या करना है कि Y नेटवर्क के अंदर जो है वो डेल्टा को प्लेस कर देना है, या डेल्टा के अंदर ही हम Y को प्लेस करके अब हमारे पास जो नोन पैरामीटर्स हैं वो R1 R2 एंड R3 हैं। हमने क्या करना है, अब हमने पास अननोन क्या RA RB एंड RC। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल ये है, कनेक्ट द डेल्टा एट द सेम नोड्स वेयर Y इज
then value of any respective resistance is equal to sum of the multiplication of all the combination of resistors. मतलब हमने डबल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन नहीं, लेकिन जितने भी रेजिस्टर्स है उन सबका कॉम्बिनेशन ले लेना है. लाइक हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R1 इंटू R2, R1 इंटू R3 एंड R2 इंटू R3. ये हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. तो हमने क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन लेनी है और इसको डिवाइड कर देना है अपोजिट रेजिस्टेंस से. मतलब उसके जो अपोजिट रेजिस्टेंस आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम RC की बात कर रहे हैं, तो आरसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो तीनों सब रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन लेना है मल्टीप्लिकेशन का. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 करके फिर हमने डिवाइड किससे करना है, RC अगर हम फाइंड करें तो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, R3. इसी तरह से अगर मैंने RB फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में मेरे पास सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन का डिवाइडेड बाय R2. और अगर मैंने RA फाइंड करना है तो RA के लिए वही कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय R1, ये इसके अपोजिट रेजिस्टेंस. दिस इज हाउ we can convert a Y network into delta network. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज है, these networks can be balanced, these network can be unbalanced. अभी हम सिर्फ बैलेंस नेटवर्क की बात करेंगे. तो बैलेंस्ड कब होंगे, जब Y नेटवर्क्स जो हमारे पास बैलेंस कब होंगे, जब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू RY. मतलब हर रेजिस्टर की मेरे पास जो है वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी. इसी तरह से डेल्टा के केस में RA वुड बी इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू RC. तो मेरे पास वो R डेल्टा इक्वल आ जाएगा, तब हम नेटवर्क को बैलेंस कह सकते हैं. अगर हम इन फॉर्मूलाज को यूज करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, RY किसके इक्वल आ जाएगा, R डेल्टा बाय 3. ये R delta मेरे पास किसकी हो जाएगा, 3RY. So this is only applicable for the case of the balanced Y and balanced delta network. लेकिन जरूरी नहीं है हर टाइम पे हमारे पास बैलेंस्ड ही हो, it could be unbalanced as well. ठीक है. ये हमारे पास डेल्टा से वाई कन्वर्जन्स थी. अब इसी से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे जो है वो ओवरव्यू करा देती हूँ एंड देन यू हैव टू सी के हाउ यू कैन परफॉर्म इट. ठीक है. सो वी हैव एग्जांपल 2.26. एग्जांपल 2.26 में हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है इन द फिगर ए, जिसमें 12 वोल्ट का सोर्स है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट these resistors are connected in parallel or they are connected in series. And what we have to do, we have to find the source current which is IS. So what we have to do, अगर हम इस नेटवर्क को केयरफुली एग्जामिन करें, so this indicates that कि हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट रेजिस्टर्स है 12, 18 और 6 किलो ओम के, ये हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं. और इसी तरह से 6, 4 और 9 किलो ओम भी हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं. अगर हम इनको और एग्जामिन करें तो हमारे पास जो है 12, 6 एंड 4 किलो ओम और जो 18, 6, 12, 6 एंड 4 किलो ओम, ये हमारे पास एक वाई नेटवर्क भी बना रहे हैं. इस तरह से 18, 6 और 9 किलो ओम हमारे पास भी एक वाई नेटवर्क भी बना रहे हैं. मतलब ये डेल्टा नेटवर्क भी है. अगर हम इसको इस तरह से एग्जामिन करें 12, 18 एंड 6 ये मेरे पास एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं. इस तरह से 6, 4 एंड 9 भी मेरे पास एक डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे देखूँ 12, 6 और 4 मेरे पास एक वाई नेटवर्क या टी नेटवर्क बना रहे हैं और इस तरह से 18, 6 और 9 किलो ओम मेरे पास जो है वो भी एक टी नेटवर्क बना रहे हैं. ठीक है. और वी कैन इजिली अच्छा हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि ये जो है मेरे पास अब एक एग्जांपल है. ठीक है. इस एग्जांपल में जो है वो हमारे पास मैंने आपको बता रही थी कि 12, 4 एंड 6 किलो ओम के रेजिस्टर्स जो हैं वो टी कनेक्टेड हैं और ये वाले जो हैं वो हमारे पास वाई कनेक्टेड हैं. सो व्हाट वी आर सिंपली डूइंग कि ये जो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं जो कि डेल्टा नेटवर्क बना रहे हैं, वी जस्ट कन्वर्टेड इनटू द वाई नेटवर्क. ठीक है. इन द फॉलोइंग वे that we have RA, RB and RC and we have to convert it into R1, R2 and R3. ठीक है. So simply आपने ये करना है कि इसको क्योंकि आपने Y में ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है. So you need to know the value of R1, R2 and R3. Now you know कि R1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि जो भी R1 जिन दो नोड्स के दरमियान में कनेक्टेड होगा, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस. सो बिकॉज इसके अंदर अगर हम वाई नेटवर्क प्लेस करें तो यहाँ से हमारे पास जो है वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर. तो ये किस तरह से आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6 प्लस 12. ठीक है. इसी तरह से अगर हमने R2 की वैल्यू लेनी है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द sum of the all of the resistances. And if we need to connect this third branch
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 18 और 12 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय सम ऑफ द ऑल द कॉम्बिनेशंस एंड वी कैन सिंपली फाइंड इट आउट। सो जो रिजल्टेंट हमारे पास वाई नेटवर्क बन गया वो ये बन गया, इसको हमने इसके साथ प्लेस कर दिया एंड ये जो रिमेनिंग रेजिस्टेंसेस है वो हमारे पास उसी तरह से कनेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 और 2 किलो ओम का रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और 9 और 3 किलो ओम के रेजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो 4 + 2 6 आ गया, 9 + 3 12 आ गया। अगर हम इनको अब जो है वो यहाँ पे हम करें तो ये हमारे पास जो है वो सीरीज में आ गए और इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपस में क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। सो हमने 6 और 9 को जब पैरेलल में सॉल्व किया तो हमारे पास एक 4 किलो ओम का रेजिस्टर आ गया। अगेन द 6 किलो ओम will connect in series with the 4 kilo ohm resistance, and now we can simply find out the value of this is, which should be just apply the Ohm's law that V by R। तो V हमारे पास 12 है, डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या जाएगा 6, और इन सबको सॉल्व करके हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो 4 किलो ओम थी। सो वी कैन फाइंड आउट दैट IS that would be equals to, so it should be equals to 1.2 milliampere. This is how we can solve the circuit in order to find the requirement, जो भी हमारे requirement है, and we can convert Y delta conversions। ठीक है, इस तरह से आपकी जो next assignment है वो ये है कि you have to find out the total resistance RT in the circuit given below, and इसमें आपने क्या करना है, V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी। आंसर्स आपके पास गिवन है। आप सिंपली यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये एक बन रहा है डेल्टा नेटवर्क, ये भी हमारे पास एक डेल्टा नेटवर्क बन रहा है। आप सिंपली एक नेटवर्क को वाई में कन्वर्ट करके यू कैन फाइंड इट आउट एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो आपके पास जो भी टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से आती है आर टी आ रही है। ठीक है, दैट शुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। मैं आपको एक हिंट यहाँ पे दे सकती हूँ कि ये आपके पास एक सिंपल पाई नेटवर्क जो डेल्टा नेटवर्क बन रहा है, आप इसको क्या करें वाई में कन्वर्ट कर दे दिस वन। ठीक है, इस वाले को। अब वो जो वाई कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ ये वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में या पैरेलल में आ जाएंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस कि वो आपके पास क्या आ रही है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 2.25 में, इसमें आपने वी नॉट फाइंड करना है, आपके पास करंट सोर्स गिवन है और आपने जो इस रजिस्टर के क्रॉस जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें अगेन आपके पास जो है वो दो वाई नेटवर्क्स बन रहे हैं। ये आपके पास ये वाला जो है वो ये वाई नेटवर्क बन रहा है, ये भी एक वाई नेटवर्क है, डेल्टा भी बन रहे हैं ये दोनों। आप किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन भी करने से आपके पास रेस्ट ऑफ द सर्किट वुड बी सॉल्व आउट। ठीक है, आपने नेक्स्ट एग्जांपल तक एग्जांपल 2.24 एग्जांपल 2.25 मुझे करके जो है वो सॉल्व करके देनी है एंड यू वुड सी कि हाउ दिस प्रोसेस गोस, आपको वाई डेल्टा कन्वर्जन की कितनी समझ आई है। जहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो रहा है, इसके बाद जो है वो वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर 3 व्हिच इज द नोडल एनालिसिस एंड द मेश एनालिसिस। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।